mention titles that reflect the memories they have made with us. So let's celebrate their contribution with a round of applause. Any guesses? आता है जो बहुत कम, ना जाने क्या करता है बुधवार में घर. Any guesses? Master Vansh Saini. Come on the stage. उखड़े उखड़े रहते हो, इन होठों को कस भी लिया करो. हम कहते कहते थक गए, बोल भी लिया करो. Any guesses? विराट. मैं डालू लाल में भंगड़ा तू हिंदी गाता है चले रंग जमा दे हमके बने सभी मतवाले बड़े साले में मस्ती चाहिए हेलो हेलो तुम मुझे लगाई येलो येलो कंट्रोल करो भाई
तेरा मेरा साया। मेरे दिल की तुम्हारे कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना जीना वो दिन कभी ना आए। मेरे
लड़दी ओए ओए बाबा बोलते आ संगवान दी ओदी नाल भी मच्छियां मारने तो पाती फिर लीड आया दुनिया दे टिकण दे चलो पत्ती करे लगावे ते डाग मारती ओ मुंडा कर चंडीगढ़ दी बदली सुनते रहना तो सुनिया तुम तेरे हवाले आकी पिया जट दरना ते मोर तेरी हट थले किया मारू लागी
जाओ सारे मुंडे बना के पूछो तो थोड़ा रंग घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मुंडे बना के और लड़की से don't miss a chance और लड़की से don't miss a chance डिस्को में जब ये गाना बजेगा on the floor आना पड़ेगा लुंगी को उठाना पड़ेगा शर्ट करके दिखाना पड़ेगा डिस्को में जब ये गाना बजेगा on the floor आना पड़ेगा लुंगी को उठाना पड़ेगा शर्ट करके दिखाना पड़ेगा और लड़की से don't miss a chance और लड़की से don't miss a chance Goodbyes are not forever. Goodbyes are not the end. They simply mean I will miss you until we meet again. Good afternoon, respected principal ma'am, coordinator sir, coordinator ma'am, vice principal sir, and my esteemed teachers. And the most extraordinary family that I have had privilege to be a part of class 2024-25. Today, as I stand before you, I am filled with mixed of emotions, joy, nostalgia, and even a little sadness. It feels like just yesterday when I walked into this school excited but unsure of what lay ahead. Now, as I prepare to step out, I can confidently say that these years have shaped me in ways I never imagined. And I will carry these memories with me forever. From the very first day, this school become my second home. I remember the excitement of meeting new friends, the nervousness before my first school assembly, which was on Earth Day, and the countless lessons, both academic and life-related, that I have learned along the way. Whether it was on our NSS camp or where I had had the privilege of experiencing valuable lessons of leadership and teamwork. One of the happiest moments for me was when I was entrusted with the responsibility of being the head girl of Jamdagni Public School. It was not just a title, it was an opportunity to serve and make difference, however small. Being a part of such an amazing team of teachers, staff and classmates has been an honor, and I will forever cherish the bonds I have formed here. Whether it was leading the student council or participating in school activities, I will never forget the school annual functions, the sport days and the cultural events. These were the moments when we all as a school community came together to celebrate our talents and achievements. There were times of laughter, times of celebration and even a times of learning from our mistakes. But we always had each other's back. To the teachers who guided us through lessons, challenges and success, your dedication, patience and passion have made all the difference in shaping us. You have not only imparted knowledge but also life lessons that we will carry with us forever. For your hard work,
your encouragement and countless hours you spent investing in our growth, we are truly thankful. And to those teachers who may not have directly taught us, your presence has still been felt. Sometimes it's in the small gestures, the encouragement, or the examples you all set. Even from the distance, you have contributed to making this experience richer and more meaningful, and for that we are grateful. Each of you has played a unique and valuable role in our lives, and we thank you for the bottom of our hearts. You have made us who we are today, and we will always carry your lessons with us. And now, to my friends, wow, where do I even begin? I would probably write a book about all the crazy movements and silly jokes we have shared over the years. And some of them might even be suitable for public consumption. We all have had these moments of confusion, laughter, and even tears. But every single one of them has become a cherished memory. My friends, you were the one who helped me up when I was stressed, who shared the excitement even we achieved something together. I know we all have different paths ahead of us, but let's promise to take these memories with us and never forget the people who make this journey unforgettable. Let's carry the spirit of Jamdagni Public School with us wherever we go. In closing, I want to thank once again to everyone, our teachers for their endless support and the school for being the foundation of it all. Thank you so much. Good morning, respected principal ma'am, vice principal sir, coordinator ma'am, and transport in charge sir, my friends and my teachers. पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मैं जो भी यहाँ बोलूँगा अपने दिल से बोलूँगा और जो मुझे दिखेगा मैं वही बोलूँगा. So first of all मैं यहाँ पे 3rd क्लास से पढ़ रहा हूँ. जब हमारी असेंबली रिसेप्शन एरिया में हुआ करती थी तब बहुत कम बच्चे हुआ करते थे स्कूल में, शायद 200 या 300 होंगे. फिर हमारी क्लास टीचर जनक मैम हुआ करती थी हमारी क्लास टीचर. तो फर्स्ट टीचर्स जिनके साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ वो थी मौली मैम, जनक मैम, और यही कुछ याद है. बाकी तो स्कूल छोड़ के चले गए. फिर हम जैसे ही बड़े होते गए तब तो जब हम स्टार्टिंग में मैं आया था तो सबसे बहुत डर लगता था टीचर से. फिर उसके बाद 4th क्लास में सुमित सर आए. सुमित सर से तो तब से लेके 10th तक बहुत डर लगता था कि सर से कैसे कोई बात करें. और प्रिंसिपल मैम से भी पहले शुरू ऊपर से स्टार्ट करते हैं. पहले प्रिंसिपल मैम से मुझे ऐसा लगता था अब तक 12th तक कि प्रिंसिपल मैम शायद हंसती नहीं, जो गुस्से में ही रहती है. लेकिन ये मैंने तब देखा जब और एनुअल फंक्शन में मैंने पहली बार मैम को हंसते हुए देखा. फिर मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ. फिर उसके बाद रिलैक्सली मैं ऑफिस में जाने लगा. नहीं तो पहले तो हम डर के जाते थे, यार मैम डांटेगी हमें, कैसे बात करेंगे. लेकिन उसके बाद ये डर दूर हुआ. और फिर थोड़ा नीचे आते हैं कोऑर्डिनेटर सर. अभी 2 साल ही हुए हैं हम कोऑर्डिनेटर सर से मिले हैं. जानते तो हम सब पहले भी थे, लेकिन जो क्लोज इंटरेक्शन हुआ है वो 2 साल पहले हुआ है. तो बहुत अच्छा लगा. सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी विद अ ग्रेट ड्रेसिंग सेंस. सर की सोच और सबसे अच्छी चीज जो सर में लगी, सर का डेडिकेशन और सर का ड्रेसिंग सेंस. सर आई इंस्पायर्ड फ्रॉम यू अ लॉट. और नीचे आते हैं वाइस प्रिंसिपल सर. सर से हालांकि हम पढ़े नहीं, 10th में भी नहीं पढ़ा है सर ने हमें, 11th में भी, लेकिन सर से इंटरेक्शन तो रहा है, वो भी बहुत अच्छे हैं. लेकिन सर से डर नहीं लगता था क्योंकि
सर गुस्से वाले नहीं थे, वो देख के पता लगता था कि सर गुस्से वाले नहीं है। थोड़ा हंस के तो सर से इतना डर नहीं लगता था, लेकिन हमारा सर के बारे में अब मैं कुछ और नहीं है, क्योंकि सर से मैं पढ़ेगी, सॉरी सर इसके लिए। और अब आते हैं फर्स्ट पीरियड पे। हमारी क्लास टीचर नाम क्या है माय फ्रेंड्स? She was the best that we could have as our class teacher. मैं सेशन के मिड से अपने दोस्तों को, और मतलब मेरा जो क्लास में सबसे प्रिय मित्र है वो तो खुशदीप है, मैं उसे यही कहता था कि प्रीति मैम सबसे बेस्ट टीचर हैं जो हम डिजर्व, जो हमें मिल सकती थी इस साल, बिकॉज शी इज द मोस्ट। हमारा मतलब कहते हैं कि प्यार भी उसी से होता है जिसके साथ दिल मिलता है। प्रीति मैम से हमारा दिल मिला, और स्टार्टिंग से जब हम 12th में एंटर हुए हमें बहुत इंतजार रहता था कि 9th पीरियड कब लगेगा और मैम के साथ डिस्कशन कब करेंगे। एंड दोस वर द बेस्ट आवर्स, और यू कैन से द मिनट्स ऑफ द डे। मतलब पढ़ाई तो पूरा दिन ही करते थे, लेकिन वो चीज सबसे बेस्ट होती थी कि 9th पीरियड कब लगेगा और मैम के साथ हमारा डिस्कशन कब होगा। कभी पैसों को लेके, कभी किसी सोशल इशू को लेके, कभी दोस्तों को लेके, और कभी सोसाइटी को लेके। दैट वाज द बेस्ट थिंग, और मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ मैम का। और फिर मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने बायो लेके बिल्कुल अच्छा किया, क्योंकि हमारे साथ प्रीति मैम थी जिनके साथ हमने बहुत अच्छा टाइम किया। फिर सेकंड पीरियड पे आते हैं हमारी अंशु मैम। अंशु मैम कुछ ही मतलब 6-7 महीने हुए होंगे अभी उन्हें स्कूल में हुए। पहले में सोनिका मैम पढ़ाती थी। शुरू में तो हमें कुछ समझ नहीं आता था केमिस्ट्री का। हम सब यही कहते थे यार कुछ समझ तो आने का, और फिर ऑर्गेनिक चल रही थी। लेकिन मैम से भी हमारा दिल बहुत अच्छी तरह मिला, और मैं अपने सभी मतलब जो मेरे क्लास के बायो के स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से ये कहूँगा कि मैम यू आर द बेस्ट। दिल्ली में रहना है, कुछ पढ़ाई भी करिए। मैम जहाँ दिल मिलता है वहाँ सब कुछ हो जाता है। दिल मिलना जरूरी है। और मैम भी रोस्ट बहुत अच्छा करती है जब मैम का मूड हो, और एकदम कूल, किसी चीज की टेंशन नहीं है। चलो थैंक यू मैम जी। और नीतीश सर पे आते हैं। ही इज द शेर ऑफ आवर स्कूल। एंड ही इज आल्सो द बेस्ट रोस्टर। वो बहुत मतलब कि जिसको पकड़ ले फिर उसको पूरा रोस्ट करके छोड़ते हैं। एंड ही इज द बेस्ट डाउन टू अर्थ पर्सन, एकदम काम, कोई कुछ भी बच्चे शोर मचाते हैं। एंड दिस इज द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट हिम। I want to be like him, the calm he is and the charm he holds. Thank you sir. सर आपका साथ हमेशा हमारे साथ रहे और आपका आशीर्वाद। अब आते हैं फोर्थ पीरियड में, इंग्लिश वाले मैम। इंग्लिश पूजा मैम से सिर्फ एक चीज का डर लगता था कि मैम आते लिखवाने लगेगी कि मैम ने कुछ नहीं सुनना, गुड मॉर्निंग है, आते नोटबुक खोलो और लिखना स्टार्ट। बहुत एंजॉय किया, लेकिन मैम का यही मोटिव रहता था कि बच्चे, मैं अपना टाइम वेस्ट ना करूं और बच्चे भी टाइम वेस्ट ना करें, कुछ ना कुछ मेरे से सीखे ही, हमारा एक भी मिनट वेस्ट ना हो। हम उस चीज को तब नहीं समझते थे, लेकिन अब समझ आ रहा है, क्योंकि हम आपसे दूर होने जा रहे हैं तो ऐसे लगता है कि हम काश उस टाइम में वापस चले जाएं जब हमारी 12th स्टार्ट हुई थी, या जब हम छोटे से स्कूल में आए थे, और यही सेम फीलिंग हो। तब फीलिंग कुछ और थी कि हम, वो कहते हैं ना कि जब आजादी का समय आया तो पिंजरे से ही प्यार हो गया। उस बात को आज हम नहीं कर पा रहे हैं कि ये बात बिल्कुल सही थी। थैंक यू मैम। अब फिफ्थ पीरियड किस चीज का था? आईवी वाले का। मैम
मैम ने हमें शुरू से तो नहीं मारा, लेकिन एंड में आते आते हमने कुछ हरकतें ऐसी की, मैं और मेरा दोस्त, मैम हमें पीटने लगी। मैम ने कहा कि तुमने शुरू से तो आज तक मार नहीं खाई, और एंड में आते आते जब तुम्हारा जाने का समय हो गया तो मैं तुम्हें पीटने लगी हूँ। फिर हमने कहा कि मैम मार ही है जो आपकी याद आएगी, प्यार तो सभी करते हैं, प्यार आप ही करते हो, लेकिन आप में अलग ये है कि आपने हमें मारा, वही याद आएगा। She was also the most supportive teacher we could have. उन्होंने भी हमें बिल्कुल अपने बच्चों की तरह पैम्पर किया, मतलब अपने बच्चों की तरह रखा। थैंक यू मैम अलॉट। और कंप्यूटर लैब में बहुत मजे किए हम सब ने, वो तो सबको पता ही है। और 6 पीरियड किस चीज का था? हाँ, वो तो प्रैक्टिकल्स के पीरियड थे। और अब आते हैं हम अपने, कोई सब्जेक्ट रहता नहीं है, हिंदी में मैं था नहीं, सॉरी टीचर। फिजिकल एजुकेशन सुमित सर जैसे कि मैंने आपको बताया 4th क्लास में आए थे, जब हम 4th में थे, हमारी क्लास टीचर मौली मैम थी तब। और सर से शुरू से बहुत डर लगता था, 10th तक भी। सर मारते बहुत है ना, इसलिए हमें तो नहीं मारा खैर, लेकिन बच्चे मार खाते हैं अपनी हरकतों की वजह से, हमने भी हरकतें की। लेकिन जब से हम 11th और 12th में आ गए, सर से ऐसा प्यार रहा हमारा, शायद ही टीचर सबसे प्यार था, लेकिन सर से ऐसा प्यार रहा शायद ही किसी से रहा होगा। सर से जितनी हेल्प हमारी की जाती थी, वो सर ने उतनी हेल्प की। एंड सर हमारे दिल में है। और मैं आपको बताता हूँ, परसों की बात है, मेरी सिस्टर की वेडिंग थी और मैंने सर को, हमारा प्रैक्टिकल था फिजिकल एजुकेशन का, और मैंने सर को कहा सर मुझे जल्दी जाना होगा क्योंकि घर में वेडिंग है। और सर ने सबसे पहले, हालांकि फिजिकल से भी पहले, मेरा वाइवा दिलवाया और मुझे कहा कोई बात नहीं, तुम जाओ, हम आपका देख लेंगे। और ये प्यार ये किसी ही व्यक्ति से मिलता है। He was the most supportive one. I can say he is the most supportive one. सर ने इतनी ज्यादा हेल्प की। सर हमेशा हमारे साथ, मतलब दिल में रहेंगे सभी टीचर्स से। और मैं कहना चाहूंगा कि थैंक्स ऑल। जिन टीचर्स का मैंने नाम नहीं लिया, सॉरी, क्योंकि मैं आपसे पढ़ा नहीं, अब मैं आपको ज्यादा जानता नहीं करीब से, लेकिन शुक्रिया सबका। मीना मैम, अंशुल सर ने लिया, कौन मैम? हाँ, कोई बात नहीं, 2 साल नहीं पढ़े आपसे, लेकिन बचपन से आपसे पढ़ रहे हैं। मैम वाज आल्सो ग्रेट। और 10th में शायद 9th में पढ़े थे मैम, मीना मैम से। शी वाज, मैम से भी कभी कभी बात होती थी, जैसे एग्जाम में किसी टॉपिक के बारे में, और मैम बहुत अच्छा लगा। मौली मैम है यहाँ पे? मैम आपको कैसे भूल सकते हैं मैम, बहुत याद आएगी आप सबकी। और मैम आपकी, मैम 3rd क्लास में शायद हमारी क्लास टीचर थी, और मैम ने बहुत प्यार दिया अभी तक। हालांकि मैम ने हमें पढ़ाया नहीं, 4th 5th तक पढ़ाया, लेकिन बहुत ही ज्यादा प्यार दिया अभी तक भी। मैम मुझे फेयरवेल में भी कहती थी कि मेरे साथ फोटो क्लिक करना, वो रह गया। He is one of my favorite student in my life. और मैम, हम 6th क्लास में हुआ करते थे, तो मैम मुझे कहती थी रोज, बेटा तुम्हें टॉप करना है, तुम्हें टॉप करना है। और मैम की ही वजह से मैंने टॉप किया। और अब भी मुझे 10th से मैम कह रही है बेटा तुम्हें ही टॉप करना है। और मैम कहती है कि मैम की इंट्यूशन पावर, और जो मैम बोलती है उसमें इतनी पावर है कि जो वो कहेंगी वही होगा, और इन्होंने कह दिया वही होगा। अब मेरे दोस्त जो मेरे साथ शुरू से पढ़ रहे हैं, 3rd क्लास से 12th तक, बहुत अच्छा सफर रहा आपके साथ, आगे भी रहेगा, लेकिन हम अब बिखर जाएंगे। कोई दिल्ली होगा, कोई देहरादून, कोई बॉम्बे। और बहुत अच्छा सफर रहा आपके साथ, बहुत प्यार दिया आप सबने, और मेरे दिल में आपके लिए एक अनोखी जगह है। दोस्तों जिंदगी में और भी आएंगे, लेकिन जो आपका प्यार और जो आपकी जगह है दिल में, वो और कोई नहीं लेगा। और मैं ये आशा करता हूँ कि हम हर साल रीयूनियन पे मिलते रहें। और मैं
रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे कि आप हर साल आएं और हम एक दूसरे को हर साल और भी सफल होके मिलते रहें। रिक्वेस्ट है कि आप हर साल आएं ताकि हम आपके चेहरे देखते रहें और आपको भूले ना। सभी मेरे दोस्तों से एक गुजारिश है। थैंक यू एवरीवन। Was our principal ma'am to come and say few words. This moment is very emotional, nostalgic for me especially, because today for the first time we will be bidding farewell to some of our students who have been in the school as long as I am here.